خورشیدہ پروین اور نیوز مومنٹ اردو سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ نیوز مومنٹ اردو میں آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ آسنسول میں ایک اور فیکٹری بند، سینکڑوں مزدوروں کی روزی کا خطرہ۔ سیل نے مائی گوو کے ساتھ مل کر قومی کہانی لکھنے کا مقابلہ شروع کیا۔ پورے گاؤں میں اسہال کی وبا پھیل گئی۔ درگا پور افراد داخل، 27 کی سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں۔ مقامی لوگوں نے اسکول کو تالا لگایا، طلبہ باہر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ رانی گنج کے تاریخی پیر بابا میلے کے حوالے سے رانی گنج تھانے سے میٹنگ۔ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں 25 BPS کی کمی کی۔ سنتراج پرساد کی اطلاع کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا نے ریپو ریٹ میں 25 پوائنٹ سے 6.5% سے 6.25% تک کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر اسٹینڈ ڈپازٹ فیسلٹی کی شرح 6% ہے، جبکہ مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی کی شرح اور بینک کی شرح اب 6.50 پر ہے۔ ریپو ریٹ میں کمی اور صنعتی سرگرمیوں میں متوقع بحالی اور مضبوط گھریلو کھپت کے ساتھ مثبت کاروباری جذبات کے ساتھ آر بی آئی نے 2025-26 کے لیے حقیقی مجموعی گھریلو پیداوار GDP 6.7% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ ریپو ریٹ میں کمی کے ساتھ ہوم لون پر سود کی شرح میں کمی آئے گی۔ اس طرح گھر خریداروں کو بہت ضروری ریلیف ملے گا۔ اس سے ہاؤسنگ کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے صارفین اور سرمایہ کار دونوں کو فائدہ ہوگا۔ مرکزی بینک کو بنیادی افراط زر کے معتدل رہنے کی توقع ہے، تاہم عالمی مالیاتی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال اور موسمی حالات کے ساتھ ساتھ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ آنے والے سال میں عام مانسون کی توقع کرتے ہوئے مرکزی بینک نے 2025-26 کے لیے صارف قیمت اعشاریہ افراط زر 4.2% رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ اروند نگر کا ایک نوجوان صبح سیر پر لاپتہ، انتہائی پریشان گھر کے کنبہ۔ بپن پال کی رپورٹوں کے مطابق روپ نارائن پور چوکی کے تحت دیش بندھو پارک کا ایک 19 سالہ نوجوان شبھجیت مترا صبح کی سیر کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ اس کے چچا چترنجن ریلوے ورکر پردیپ ڈے نے بتایا کہ ہر دوسرے دن کی طرح شبھجیت آج صبح 6 بجے کے قریب اپنے اروند نگر سے چترنجن چلڈرین پارک کے لیے گھر سے نکلا۔ دوسرے دنوں وہ 8:30 بجے تک واپس آ جاتا ہے، لیکن آج اس کے والدین نے شبھجیت کے فون 6294839830 پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کا فون بند ہے۔ کافی دیر بعد جب شبھجیت گھر نہیں لوٹا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پردیپ بابو نے بتایا کہ ان کا بھتیجا شبھجیت آسنسول BC کالج آف کامرس کا طالب علم ہے۔ انہوں نے مارتھا بھومی کے نمائندے کو بتایا کہ وہ روپ نارائن پور پولیس کو گمشدگی کی اطلاع دے رہے ہیں۔ لاپتہ شبھجیت کے والد دیپک مترا جھارکھنڈ میں ٹیچر ہیں۔ پردیپ بابر نے درخواست کی ہے کہ اگر شبھجیت ملے گا تو موبائل نمبر 6568599670 پر اطلاع دیں۔ چٹ فنڈ کے نام پر مختلف ریاستوں سے
करोड़ों रुपए की धोखा देगी। वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन नामी तंजीम के सरबराह मोहम्मद नदीम और उनके साथियों पर आज कुछ ख्वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के नाम पर इन ख्वातीन के ज़रिए लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लिए, लेकिन जब रकम वापस करने की बात आई तो मोहम्मद नदीम ने उसे अपने साथियों का नाम दे दिया। छत्तीसगढ़ से आने वाली शबनम परवीन नामी ख्वातीन ने बताया कि वो भी मोहम्मद नदीम और उसके साथियों की नरम बातों का शिकार हो गई थी और उन्होंने अपने इलाके के आम लोगों से पैसे लेकर इस कंपनी में जमा कराए थे। कंपनी के अहलकारों मोहम्मद नदीम और दिगर ने उनसे वादा किया था कि उसके बदले में उन्हें भारी रकम मिलेगी। शबनम ने कहा कि वो आसनसोल आई हैं क्योंकि ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन का हेड ऑफिस आसनसोल में जुबली के करीब है, लेकिन मोहम्मद नदीम उनसे मिलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो आम लोगों से जो पैसे लेकर कंपनी में जमा कराए हैं वो वापस करें। आसनसोल में एक और फैक्ट्री बंद, सैकड़ों मजदूरों की रोजी का खतरा। सीताराम की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी बंगाल के आसनसोल के कुमारपुर इलाके में वाक़े डियाजियो की ज़ेली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इन दिनों खबरों में है क्योंकि इस कंपनी में पैदावार पिछले 7 महीनों से रुकी हुई है। यहाँ तक कि कंपनी ने अपनी तमाम फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन को घर बना रखा है। यही नहीं, कंपनी ने फैक्ट्री में रखे तमाम स्पेयर पार्ट्स, मशीनें, शराब की मुख्तलिफ ब्रांड्स की बोतल के ढक्कन, शराब के मुख्तलिफ लेबल और दीगर बहुत सी चीज़ें भी छीन ली हैं। आपको बताते चले कि 1826 में बनने वाली इस फैक्ट्री में इस वक्त 145 मुस्तकिल मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि 110 मजदूर आरामदा बुनियादों पर यानी प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सतह के लीडर केश नंदू मुखर्जी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में एक के बाद एक फैक्ट्रियों का बंद होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत में वज़ीर आला ममता बनर्जी की हुकूमत है, रियासत में इसी किस्म की हालात जारी रहेगी। रियासत में तरक्की और सनत को बचाने के लिए ममता हुकूमत को रियासत से इक़्तिदार हटाना होगा। DYFI की जानिब से 12 निकाती मुतालबात के हक में मेमोरेंडम पेश किया गया। बिनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक बाएं बाजू की नौजवानों की तंजीम DYFI की जानिब से 12 निकाती मुतालबात की हिमायत में आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौका प्रोक्टर आचार्य अतानु मुखर्जी, सुजीत कड़ी, शांति मजुमदार, संजय परमानिक समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। ये मेमोरेंडम 12 निकाती मुतालबात की हिमायत में पेश किया गया, जिसमें ज़िला अस्पताल में खाली आसामियों को करने, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रामा सेंटर को जल्द अज जल्द खोलने और उसे मुकम्मल तौर पर फ़आल करने के मुतालबात किए गए। इसके साथ ही अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में मरीज़ों को ले जाने के लिए अमला तैनात करने का मुतालबा किया गया। अस्पताल के एक शोबे से दूसरे शोबे में मरीज़ों को ले जाने के लिए कोई मुलाजिम नहीं है, मरीज़ के घर वालों को ये काम करना पड़ता है। तंजीम ने मुतालबा किया कि इस काम के लिए तरबियत याफ्ता मुलाजमीन की खिदमत हासिल की जाएं।
মিল ওয়ার্ডে সেই মিল ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা অবস্থায় স্লিপ করে দেওয়া হয়েছে, যে স্লিপে কোনো সই নেই, স্লিপ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে লাইন সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ওষুধপত্র কিনে নিয়ে আসতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণিক सेल ने माई गोव के साथ मिलकर कौमी कहानी लिखने का मुकाबला शुरू किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माई गोव के ताउन से एक कौमी कहानी लिखने का मुकाबला शुरू किया है। सेल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन 2025 मुल्क भर के ख्वाहिशमंद मुसन्निफीन को सेल बिल्डिंग कल्चर ऑफ हैप्पीनेस वेयर एवरी स्माइल काउंट्स के लिए मदऊ करता है। आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और सेल खुशी की सकाफत की तामीर, जहां हर मुस्कुराहट अहमियत रखती है, के मौजू पर मुनफरद कहानियाँ शेयर करने के लिए मदऊ हैं। इस कहानी के मुकाबले में हिंदी या अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहानियाँ पेश की जा सकती हैं जिनकी लफ्ज़ी हद 800 अल्फाज हैं। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए शरकाए को www.mygov.in टास्क सेल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन 2025 पर रजिस्टर होना चाहिए और अपनी कहानियाँ जमा कराना चाहिए। कहानी जमा कराने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2025 11:45 से 5:30 है। इस मुकाबले के फातहीन को न सिर्फ तस्लीम किया जाएगा, उन्हें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़मरों में अलग अलग नक़द इनामात से भी नवाजा जाएगा। पूरे गांव में असहाल की वबा फैल गई। दुर्गापुर अफराद दाखिल 27 की सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। पवन शर्मा की रिपोर्टों के मुताबिक पेट में दर्द और उल्टी जूझू रात बढ़ती गई। डायरिया में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा होता गया। अब तक 27 लोगों को दुर्गापुर एपेडेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घर में मज़ीद 7 अफराद बीमार हैं। इस वाक़े की वजह से दुर्गापुर, नालंदेगी, कनकासा की कच्ची आबादियों में खौफ व हरास फैल गया है। इसके बाद भी इलाका के ट्यूबवेल सेल नहीं किए गए हैं। मुकामी लोगों की शिकायत है कि पीने का पानी फराहम नहीं किया जाता। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक गांव के कई लोगों को बुध की दोपहर से ही उल्टी और असहाल होने लगा। शाम से ही कई असहाल और बीमारी में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। जुमेरात की सुबह तक इलाका के 27 लोगों को दुर्गापुर के अफीज़ा अस्पताल, दुर्गापुर के ESI अस्पताल और नालंदेगी के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इलाका के मज़ीद 7 बीमारों को दवा दी जा रही है। मुकामी लोगों ने स्कूल को ताला लगाया। तालबा बाहर बैठने पर मजबूर हैं। तलबा और दूसरों से हमें वजह बताएं। ছাদটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এই জন্যই আমরা বাইরে পড়াশোনা করছি। কি বলেছে তোকে স্যাররা?
স্যাররা বলেছে হ্যালো না করছে ভেতরে এখন যাবার আমাদের ইয়ে নেই, গার্জিয়ানরা আমাদের কি নাম? বেতনদা একটু পরে ফোন করছি তোমাকে, খবর আছে। যে কক্ষের অবস্থা, সেই অবস্থায় বসানোর কোনো আমাদের অবস্থার মতো নেই। আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি চাংড়া খসে পড়ে, সরস্বতী পুজোর দিন একটা টেবিলে বড় মতন চাংড়া পড়ে, তো সেটা গিয়ে বাচ্চারা পুরো বাড়িতে গিয়ে হইচই করে যে এগুলো ছাদ ভেঙে পড়ছে, আমাদের গায়ের উপরে ছিটা পড়ছে। তা আমরা এসে সার্ভে করে দেখি যে হ্যাঁ সেটা সত্যি। তারপরে আমরা সকল গার্জেন মিলে একটা মানে বৈঠক মতো মিলিয়ে পরে আমরা এসে দেখি যে হ্যাঁ সত্যিকার সেটা পড়ছে। আমরা এসে দেখি তখন আমরা মানে নিজেরা ইয়ে করি যে স্যারকে এসে জিজ্ঞেস করি যে স্যার এইভাবে তো কতদিন চলবে, এভাবে চলতে পারে না। তো স্যাররা আমাদেরকে আশ্বাস দেয় যে নাকি ওনারা চিঠিচাপাটি করেছে, কোনোদিন আজ 2 বছর ধরে এই চলছে, কোনো কাজ হয়নি, কোনো মানে আমরা কোনো বুঝতে পারছি না যে কি হচ্ছে আর কি। স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, খাওয়ানো হচ্ছে, চলে যাচ্ছে। তারপর যেদিন এই অবস্থা হয় আমরা এসে দেখি যে স্যার দিকে জিজ্ঞেস করছি, স্যার বলছে আপনাদের এবারে যেটা করার করেন। তখন আমরা সবাই মিলে এসে গেটে এসে তালা বন্ধ করি। তালা বন্ধ করার পর স্যাররা ফোন টোন করে আমাদেরকে এসআই আশ্বাস দেয়। স্যারও ওখানে আশ্বাস দিল যে খুব শিগগিরই আমাদেরকে কাজ শুরু হতে চলেছে। তো আমরা একটা দাবি রেখেছিলাম যে যতদিন না কাজ শুরু হচ্ছে ততদিন আমাদের এই মাঠে বসে বা গেটে বসে পড়াশোনা করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কারণ আমরা ভয় পাচ্ছি এই কারণে যে ক্লাসের যেটা অবস্থা, কারো যদি বিগত দুর্ঘটনা না ঘটে, এই জন্যই আমরা বাইরে বসেই পড়াশোনা করাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম বাপি ঘোষ। চাইছি যত তাড়াতাড়ি আমাদের স্কুল মেরামত হয় তত তাড়াতাড়ি ভালো হবে। আমরা তবেই গেটটা খোলা হবে। আমাদেরকে আজকে জানিয়েছে যে তাড়াতাড়ির মধ্যে কাজ শুরু হবে। ওদেরকে যখন জানাতে চাই আমরা যে আমাদের শিগগিরই যখন কাজটা শুরু হবে। ওরা তো বলেছি সোমবারে আসবো, সোমবারে এসে দেখে যাক কি হয়। সোমবার থেকে যদি কাজ শুরু হয়ে যায় তাহলে আমাদের বাচ্চাদের পাঠাবো স্কুলে, নাহলে আমাদের স্কুলটা গেটের বাইরেই হবে বাচ্চাদের। আর মিড ডে মিলটা শুধু রান্নাঘরটা খোলা থাকবে, বাকি স্যারদের আর বাচ্চাদের স্কুল পাঠানো হবে, ঢুকতে দেওয়া হবে না। গেটের বাইরেই আমাদের ক্লাস চলবে। जनूबी मशरकी रेलवे पर ट्रैक मेंटेनेंस के काम के लिए ट्रेनों का ज़ाब्ता। 7 फरवरी 2025 को साउथ ईस्टर्न रेलवे पर कंट्रा चंडेल सेक्शन के दरमियान ट्रैक मेंटेनेंस के काम की वजह से 13511312 आसनसोल टाटा नगर आसनसोल एक्सप्रेस 7 फरवरी 2025 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख रहेगा। मज़ीद बराम 6805668055 आसनसोल टाटा नगर आसनसोल मेमो 7 फरवरी 2025 को शुरू होने वाला सफ़र मुख्तसर तौर पर पुरुलिया से शुरू मुख्तसर पर ख़त्म किया जाएगा। रानीगंज के तारीखी पीर बाबा मेले के हवाले से रानीगंज थाने से मीटिंग। रानीगंज के तारीखी हुजूर गौसे बंगाला के सालाना उर्स और पीर बाबा मेले के सिलसिले में रानीगंज थाने के अहाते में एक अमन मीटिंग का इन्नेकाद किया गया। रानीगंज के मशहूर हुजूर गौसे बंगाला का सालाना उर्स 19 फरवरी से शुरू होगा, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इस तकरीब में न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क से भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। रानीगंज पुलिस स्टेशन के आईसी विकास दत्ता, रानीगंज के ट्रैफिक इंचार्ज अनंत राय, बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज सिटी तिरमुल के सदर रुपेश यादव, महकमा फायर बरकी महकमा और रानीगंज उर्स मेला कमेटी के अरकान मौजूद थे। अब है वक्त मूवमेंट के एसएमएस का। लेट फ्लोरल गिफ्ट्स एक्सप्रेसेस योर फीलिंग दिस रोज डे। इस गुलाब के दिन फूलों के तहाइफ आपके जज्बात का इजहार करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी आपसे गुजारिश है कि